doorstep. Cruelty type towards Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Not only did the kuffar harm the Muslims, but they did not even leave Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in peace. While he was performing salah, they threw dirt on him. Abu Lahab was uncle and neighbors of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He threw rubbish at the doorstep of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, while his wife threw thorns in his path. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam never took revenge of the people who were cruel to him. Fill in the blanks with the words given in the box. Salah, Abu Lahab, thorns, revenge, neighbor, and wife. Any difficult word that you don't know, you can ask me. Okay, Shayan? Do you know the meanings of all these words? Dash was the uncle and Abu Lahab was the uncle and neighbor. ठीक है. Dash of Hazrat Muhammad. ठीक है. They threw rubbish on Muhammad sallallahu alaihi wasallam while he was performing dash. What they threw? Dash to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thorns to Hazrat Muhammad. They threw thorns to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thorns, yeah, and the rubbish. And Abu Lahab's dash threw dash in his path. Rubbish. Abu Lahab's wife. Revenge. Abu Lahab's wife threw rubbish in his path. Why? ठीक है. रबिश फेंकती थी ना, वो कूड़ा फेंकती थी, कचरा फेंकती थी. Abu Lahab dash threw dash in his path. Abu Lahab Abu Lahab's revenge threw thorns in his path. Abu Lahab Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam never took revenge. यहाँ पे revenge आएगा, ठीक है? On these people. समझ आया? क्या समझ आया आपको? मुझे उर्दू में बताएं. कुरैश के लोग क्या करते थे? काफिर क्या करते थे? उसमें काफिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और उनके ऊपर रबिश डाल दिया कुफार लोगों ने. और उनके रास्ते में जहाँ से वो गुजरते थे वहाँ पे भी रबिश डाल देते थे. उधर कौन देते थे? और अबू लहब कौन था? अंकल एंड नेबर्स. हाँ, और वो क्या करता था? उसकी बीवी भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कचरा फेंक देती थी. ठीक है, चलो सेक्शन 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है. अब सेक्शन 1 में हमें जो कुछ भी पढ़ा है ना, मैं उसका टेस्ट लूँगी आपसे. ठीक है, आप मुझे बता दें, आप कब तक उसको देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, फिर मैं आपसे इसका टेस्ट लूँगी. ठीक है, जो भी अभी हमने पढ़ा है ना, सेक्शन 1 में हमने क्या क्या पढ़ा है, देखिए हमने सीरत नबी का कौन कौन सी चीज़ें कवर की हैं. evil days, birth of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, childhood with Amina, journey to Syria, marriage in the cave, Waraka bin Nawfal, first Muslim, open call, rejection, threats, cruelty of Quraysh and cruelty towards the Muhammad sallallahu alaihi wasallam. यहाँ तक हमने पढ़ा है ना, तो मैं इसका एक छोटा सा टेस्ट दे दूँगी आपको. ठीक है, याद है ना सब जो कुछ भी हमने पढ़ा है? चलिए अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2. अब सेक्शन 2 क्या है, अब ये देखते हैं यहाँ पे क्या होता है.
कीवर्ड्स पढ़ें। कीवर्ड्स पढ़ें। First, bribe, cruelty, not working, money, beautiful woman, kings, stop preaching, tricks. The kuffar bravery. The kuffar realized that their threats and cruelty were not working. They decided to bribe Hazrat Muhammad ﷺ. They offered him money, a most beautiful woman, and even prepared to make him their king. In order that he stops preaching Islam, Hazrat Muhammad ﷺ did not accept their offer because he was ordered by Allah Ta'ala to call people to Islam. State 3 things that the kuffar tried to bribe Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. उन्होंने क्या क्या लालच दी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? कुफार ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या लालच दी थी कि हम आपको क्या देंगे, आप इस्लाम को छोड़ दें, आप इस्लाम की तबलीग ना करें। वो क्या लालच दे रहे थे? Money, Gigi, beautiful woman, or make him their king in order that he stops preaching Islam. Did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam accept their bribe? Yes or no, Yashayan? Did Muhammad sallallahu alaihi wasallam accepted their bribe with their offers? No. Why Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam did not accept their bribe? क्यों नहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया? Yes. Why has Muhammad sallallahu alaihi wasallam did not accepted their offer? उन्होंने क्यों नहीं ऑफर एक्सेप्ट किया? Because he was the Nabi of Allah and never broke Allah's heart. शायद अगर आपको ऑफर की जाए कि आपको जो है ना, जो आपको फेवरेट चीज़ है वो आपको दे दी जाएगी, जो आपको पसंद है, जो आप बहुत दिनों से अल्लाह ताला से मांग रहे हैं और अपनी मम्मा से भी कह रहे हैं, बाबा से भी कह रहे हैं कि मुझे वो ला के दें, और अगर आपको ऑफ़र की जाए कि आपको वो चीज़ दे दी जाएगी अगर आप ये कुरान क्लास ना लें या सीरत क्लास ना लें, तो आप एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं। क्यों? आपकी फेवरेट चीज़ आपको मिल रही है। मैंने एक्सेप्ट करूँगा क्योंकि इस्लाम की जगह है ना। क्योंकि जो चीज़ आपकी फेवरेट चीज़ है वो तो दुनिया में ही रह जाएगी, और जब ये जो आप पढ़ रहे हैं इसका सवाब आपको कब मिलेगा? जब हम अल्लाह ताला के पास जाएंगे। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे होते हैं, जो हम नेकी के काम कर रहे होते हैं, ये हमेशा बाकी रहता है ना, इट लिव्स फॉरएवर। ये हमें मरने के बाद हमारे काम आएंगे ना, और दुनिया में जो हमें मिलता है वो तो दुनिया में ही रह जाता है, वो तो यहीं ख़त्म हो जाता है ना। Now, lesson number 16 to Abyssinia. चलें कीवर्ड्स पढ़ें। ये स्क्रीन कहाँ गई? मैंने पेज टर्न किया है, स्क्रीन नहीं आ रही क्या? आ जाएगी थोड़ी देर में, नेटवर्क स्लो होगा। Keywords. Permission, thinking, Lagos, Jafar, 15 to 16 people, was Hijrah, jealous, false information. Okay. To Abyssinia, 5th year after Nubuwwat. As the Muslims suffered a great deal at the hands of the kuffar, and Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gave the Muslims permission to go live elsewhere. The close
Abyssinia, Ethiopia, as a just and king lived there. The king of Abyssinia was a Christian and called Negus Najashi. All together 15 to 16 people went to Abyssinia. This was the first Hijra migration in Islam. आगे Okay. आगे पढ़े नेक्स्ट पैराग्राफ. The Quraysh became jealous. Quraysh became jealous and sent a group of people to bring the Muslims back. The group gave the king false information about the Muslims. The king called the Muslims and questioned them on learning the truth from Hazrat Jafar. The king turned the Quraysh away and allowed the Muslims to stay. Okay. What is the meaning of Nubuwat? It is written here, 5th year after Nubuwat. What is the meaning of this? Means brother, means Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Jawhar, Hazrat Jafar alayhi wasallam, like Nabis, like Adam alayhi salam, like 5th year after Nubuwat. Musa alayhi salam. नबूवत कहते हैं जब आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया, उसके 5 ईयर के बाद, 5 साल के बाद क्या हुआ था? उसके 5 साल के बाद कुछ मुस्लिम्स काफिरों के जुल्म से तंग आकर कहाँ चले गए थे? अबसीनिया चले गए थे. ठीक है, इसको उर्दू में अबसीना कहते हैं. ठीक है, अबसीना कहाँ पे था? हबशा के पास, अफ्रीका में. ठीक है, वो वहाँ चले गए थे, एथोपिया में. एथोपिया का वर्ड सुना है ना आपने? अफ्रीका में एथोपिया. चाय की पत्ती खा ली. अच्छा, फिर क्या हुआ? जब वो वहाँ गए तो फिर क्या हुआ? उनको काफिरों को वहाँ भी चैन नहीं आया कि वो वहाँ क्यों चले गए हैं ना. So underline the correct word. The Muslims went to live in Syria or Abyssinia. Where? Do you mark the correct word? Muslims कहाँ गए थे? कितनी दूर चले गए थे? एथोपिया चले गए थे, लेकिन काफिरों को अभी भी चैन नहीं था ना. The Muslims went to live in Abyssinia. The king who किंग नेम क्या था? नजाशी था या मकोशी? मकूकस, क्या नाम था? एथोपिया में जो किंग था उसका नाम क्या था? Abyssinia. नहीं, हाँ वो तो अबिसिनिया गए थे. और किंग का नाम क्या था? नेक्स्ट पढ़े. नेक्स्ट नजाशी. ठीक है, क्या नाम था उसका? नजाशी. Was a Christian. Yeah, he was Christian. Christian. All together 15 to 16, 18 to 20. 15 to 16. 15 to 16, 15 से 16 लोग गए थे. कहाँ गए थे? एथोपिया चले गए थे मुस्लिम्स. ठीक है, now explain the following. People left for Abyssinia. Explain what did the Quraysh do? Quraysh ने क्या किया था? क्यों गए थे लोग वहाँ पे? Quraysh ने You can take help from the lesson also. ठीक है, let me turn back the page. Quraysh क्या कर रहे थे? वो क्यों तंग कर रहे थे कि जिसकी वजह से उन्हें छोड़ के जाना पड़ा अपना सा प्यारा सिटी मक्का?
people went to Islam. The first Hijra migration, Islam. The Quraysh became jealous and Quraysh away and allowed the Muslims to stay. About the Muslims, the king called Muslims and questioned them on learning the truth. The Jafar, the king, and the Quraysh away allowed the Muslims to stay. The group gave the king the Quraysh. Quraysh. What did the Quraysh do? Quraysh क्या कर रहे थे? Quraysh turned the Quraysh away and allowed the Muslims to stay. Quraysh became jealous. वो jealous हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो मुस्लिम वो नहीं चाहते थे ना कि मुसलमान सुकून से रहें. सही है. Explain if the Quraysh were successful and why. अगर Quraysh सक्सेसफुल हो जाते और ना जाने देते मुस्लिम्स को तो क्या होता? अभी अब कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन इफ द Quraysh बिकम सक्सेसफुल. अगर वो Quraysh है वो सक्सेसफुल हो जाते मुस्लिम्स को रोक देते तो क्या होता फिर? वो ना जाने देते तो फिर वो भी कुफार बन जाते. नहीं, वो मुस्लिम्स तो अपना नहीं छोड़ Quraysh away and allow the Muslim to stay. नहीं, कुरैश ने थोड़ी अलाउ किया था. देखें, किंग जो था ना, जो वहाँ पे अबीसीनिया का किंग था, जब मुस्लिम्स वहाँ पहुँचे ना, तो वो जो अबीसीनिया का किंग था नजाशी था, वो उसने जो है वो उनके मुस्लिम्स के जाने के बाद ना उनके पीछे पीछे कुरैश के लोग भी वहाँ पर आ गए थे, काफिर. ठीक है. अब नजाशी ने ना उन काफिरों से जो है ना पूछा कि जो है ना मुस्लिम्स कैसे हैं. ठीक है. तो कुरैश ने, क्योंकि वो तो मुसलमानों से जेलस थे ना, तो उन्होंने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी किंग को कि मुस्लिम्स तो ऐसे हैं और ये तो ऐसे हैं वैसे हैं. ठीक है. फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी. फिर किंग ने मुस्लिम्स को पूछा तो है ना, फिर मुस्लिम्स में से जो हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु थे ना, उन्होंने कुरान की वर्सेस पढ़ के सुनाई, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया. अब जो किंग नजाशी जो था वो तो क्रिश्चियन था ना, तो उसका जो वो तो प्रॉफिट ईसा को मानता था ना, तो प्रॉफिट ईसा के बारे में हमारे कुरान में भी लिखा हुआ है. तो हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने और उस किंग को प्रॉफिट ईसा के बारे में कि जो आयात है ना, वर्सेस है, वो पढ़ के बताई, मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ के बताया. तो नजाशी को पता चल गया कि ये तो सच बता रहे हैं और कुरैश झूठ बोल रहे हैं. सही. तो किंग ने फिर मुस्लिम्स को वहाँ रहना अलाउ कर दिया. लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर कुरैश सक्सेसफुल हो जाते, यानी कि अगर वो जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी थी कुरैश ने, अगर किंग उनकी बात पे यकीन कर लेता तो क्या होता फिर? तो किंग फिर मुसलमानों को कहता है ना, वापस जाओ, यहाँ पे नहीं रहो, गो बैक टू योर कंट्री, है ना. If Quraysh was successful, then king will not allow Muslims to stay in Abyssinia. ठीक है. And the last question, explain in your own words what hijra means. हिजरा की क्या मतलब होता है? हिजरा मुझे नहीं पता. हिजरा मीन्स माइग्रेट होना, शिफ्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, अपना सारा सामान सब कुछ लेके. ठीक है. ये होता है हिजरा. तो मुस्लिम्स ने क्या किया था? मक्का को छोड़ के वो कहाँ आ गए थे? अबसीनिया आ गए थे. ठीक है. ठीक है. ये हिजरा की मीनिंग्स होती है. चलिए आज का लेसन